دو چیزیں میں آپ کو آج کے عنوان میں بتاؤں گا۔ پہلی چیز، ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی ہے اور ہماری دعائیں کیسا قبول ہو جاتی ہے۔ دو باتیں سنیں آپ۔ فرسٹ آف آل، پہلی چیز، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول نہیں ہونے کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہمارا یقین درست نہیں ہے۔ پہلی چیز، آپ جان کر حیران ہوں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے گھر میں صبح کا کھانا رہتا تھا، شام کے کھانے کی کوئی ان کے پاس پرواہ بھی نہیں رہتی تھی۔ صبح کا کھانا کھا لیے تو شام کے کھانے کے برتن خالی ہو جاتے تھے۔ شام کا اگر کھانا کھا لیے تو صبح کے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ یہ میں کس کی بات کہہ رہا ہوں؟ نبی علیہ السلام کا مبارک زمانہ، اس زمانے جیسا کوئی زمانہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں صحابہ کی یہ حالت ہے، اس زمانے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آ کر یہ کہنے لگے، اے پیارے نبی، اللہ کے لاڈلے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک اشارہ کر دیں، آسمان سے جنت کا دسترخوان تمہارے لیے بچھایا جائے گا اور تمہارے صحابہ کے لیے بھی بچھایا جائے گا۔ آپ پتہ ہے نبی نے کیا کہا؟ یہ سنیے، نبی علیہ السلام نے کہا، نہیں، اگر میں چاہتا تو روزانہ جنت کے دسترخوان منگاتا، میں چاہتا تھا تو ہر وقت میرے پیچھے سامان خزانے پڑ جاتے تھے، میں چاہتا تھا تو سارے وہ کام کروانے لگواتا جو میں اپنی زندگی میں عیش و آرام کے ساتھ جی سکتا، مگر نہیں۔ کیوں ریزن پوچھا گیا، اس کا جواب اللہ کے نبی نے یہ دیا کہ میری آنے والی امت، میری آنے والے وہ مجھ کو ماننے والے میرے فالوورز، کہیں میری یہ زندگی کی خوشحالی کو دیکھ کر وہ ان کے دل و دماغ میں یہ چیز نہ بیٹھ جائے، وہ نبی تھے آسمان سے اتار لیے، ہم تو نارمل انسان ہیں، ہماری زندگی ایسے ہی چلتی رہے گی۔ آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ایک پتھر باندھ کر آئے تھے پیٹ پر، بھوک کی وجہ سے نبی نے اپنا پیٹ ہٹایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ کتنے؟ 2 پتھر۔ کیا ضرورت پڑ گئی میرے نبی کو، 2 پتھر انہوں نے باندھ لیے۔ آسمان سے یہ ندا لگائی جا رہی ہے، اے پیارے نبی، یہ دنیا تمہارے قدموں میں رکھی جائے گی، یہ ساز و سامان تمہارے قدموں میں رکھ دیا جائے گا، مگر انہوں نے ساری چیزوں کو ہٹا کر یہ کہا کہ میرے اللہ اگر مجھے ایک وقت کھلائے، ایک وقت میرا چولہا نہ جلے، میری یہی خواہش ہے، ایک وقت آرام سے کھاؤں، ایک وقت اللہ کے سامنے رو رو کر مانگوں، ایک وقت پھر بھوکا رہ جاؤں، ایک وقت خوشحالی کی زندگی گزاروں۔ آج ہے کوئی ہمارے پاس یہ کہنے والا؟ ہے کوئی آج ہمارے پاس یہ جملے اپنی زبان سے دہرانے والا؟ یہ جملے کہنے کے لیے بھی دل گردوں کی ضرورت پڑتی ہے، یہ جملے بولنے کے لیے دل نہیں، ڈبل دل چاہیے، 2 دل چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی مگر اپنی امت کو مانگنے سے منع کیا، کیا تھی وہ دعا؟ اللہم امیتنی مسکینا، اللہم وحشرنی زمرۃ المساکین، اے اللہ میں زندہ رہوں تو بھی مسکینوں میں، غریب لوگوں میں، اور وہ لوگوں کے درمیان میں زندہ رہوں جو آج کھائیں کل پریشان رہیں، کل کھائیں پھر ترسوں پریشان رہیں، جیسا تو ان کے اوپر عطا کرتا رہے۔ میں غریبی لوگوں کے درمیان میں رہوں اور غریب لوگوں میں ہی مر جاؤں، اور کل قیامت میں میرے غریب بھائیوں کے ساتھ ہی میں اٹھ جاؤں۔ یہ اللہ کے نبی کی اتنی پیاری دعا ہے، مگر اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگنے سے اپنے امتیوں کو بچایا، روکا۔ کیوں روکا؟ اللہ سے بہتر حالت کی دعا کرتے رہو۔ آج ہے نا ہمارے پاس ذری پریشانی آندے، پورا گاؤں ایک، پورا محلہ ایک، میں دکھا میرے اوپر ہی آنا تھا پریشانی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ صحابی کا غور سے سنیں آپ لوگ، اور اس کو گھر میں فارورڈ کر دیں
सबसे बड़ा मसला घरों का है हमारे। हम यहाँ जुमा के बयानात सुन लिए, सब सुन लिए, दिल मजबूत हो जाता। और वैसे भी मर्द हजरात के दिल थोड़े से मजबूत रहते हैं, सारी चीजों को फेस करते हैं, कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशंस आंदे या फिर कुछ भी मामला होंदे, सब चीजों को फेस करते हैं। मगर घर के चंद लोगों की वजह से उनका दिल फिर से टूट जाता है। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब खंदक खोदने के लिए सारे सहाबा जमा हो गए थे, चूंकि कुफार आ रहे थे लड़ने के लिए, तो सलमान फारसी से मशवरा किया गया, चूंकि ये फारस के रहने वाले थे, तो अल्लाह के नबी को उन्होंने बेहतरीन मशवरा दिया। कहा कि अल्लाह के नबी, हमारे फारस में अगर कोई दुश्मन हम पर चढ़ आता है या हम पर हमला करने के लिए आने की डेट देता है तो हम उसके रास्ते को ही ब्लॉक कर देते हैं। मदीना के अंदर आने का जो रास्ता था, उस रास्ते के पास बड़ी खंदक खोदी गई और सब अपने लिए मेजरमेंट के एतबार से उसको माप लिया कि मैं इतना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्जे में इतना आया, सारे लोगों के लिए इतना इतना हिस्सा तय हो गया। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में भी फोड़ा और खुदाल आई, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो सहाबा ने किया वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काम कर रहे हैं ठहर कर। ऐसा नहीं है कि मैं अब बादशाह हूं, मैं बैठ जाऊं, नहीं, ऐसा नहीं था मेरे नबी के अंदर। आज देखते ना आप लोग, जरा किसी के पास माल आ जाए, अपने गरीब, अपने यतीम, अपने दोस्त अहबाब के साथ हमारा कैसा बिहेवियर होता है। मेरे नबी से ज्यादा तो माल किसी के पास नहीं था दुनिया के अंदर। फिरौन का माल भी कम पड़ जाता था मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माल और दौलत के सामने। अब आप कह रहे होंगे मेरे नबी तो गरीब थे, मगर मेरे नबी को अल्लाह ने आसमान से कहा था, नबी जी इशारा करो, ताइफ के दोनों पहाड़ों को सोना बनाकर तुम्हारे पीछे लगा दूंगा। गगा नबी ने, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए अल्लाह, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, जब तू दे जब लूंगा, जब तू रोक ले मैं रुक जाऊंगा और खुशहाली की जिंदगी गुजारूंगा। जब खंदक खोदी गई, खंदक खोदने के दरमियान में सहाबा भूखे प्यासे, खाने को खाना नहीं है, हैरान वो परेशान, अल्लाह से दुआएं मांगते हुए अपना वो खंदक का मैटर पूरा कर रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी आंखों से आंसू हैं, सहाबा के भी आंखों से आंसू हैं। डर की वजह से नहीं, भूख की वजह से पेट पीठ को लग चुका है, भूख की शिद्दत बढ़ती जा रही है, किसी के पास कुछ तोशा नहीं है। हजरत जाबिर अपने घर जाते हैं, कहते हैं मोहतरमा घर में कुछ खाने के लिए है? कुर्बान जाऊं हजरत जाबिर की मोहतरमा पर, वो सहाबियात, उन पर, वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी पर। उन्होंने कहा कि सिर्फ 10 लोगों का खाना है, सिर्फ 10 या 5 लोग खा सकते हैं, उतने ही लोगों के लिए मैं तैयार कर सकती हूं और घर में उतना ही खाना है। और सारा का सारा सामान जितना था, घर की खवातीन को यह बात सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि बहुत दफा होता क्या है, बहुत सारा माल रखा हुआ होता है, मगर उस माल से कम 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 देने की आदत पड़ जाती है। इतना हुआ उससे भी कम, या उतना हुआ तो उससे भी कम देने की हमारे खवातीन को आदत और लत लग जाती है। और यही अल्लाह रब्बुल इज्जत भी आसमान के दरवाजे जो रिज़्क़ के है बंद कर देता है। देने वाला हाथ अल्लाह ने बताया है नबी के जरिए से, देने वाले बनो। ये देते वक्त तुम्हारा सिर्फ इतना इस्तेमाल होता है, या यूं समझ ले इतना गट्टा इस्तेमाल होता है। अल्लाह कहता है कि तुम इतना बनो, मैं इतना बनूंगा। ये है अल्लाह के ज़ाब्ते, ये है अल्लाह के उसूल। जाबिर गए, अपनी बीवी को समझाया, कहा कि ठीक है 10 लोगों की दावत में नबी को कह देता हूं। जब नबी के पास आए, आकर कहने लगे, वो भी शहनशाह बतहा, कौनैन, ताजदार मदीना, सरवरे कायनात थे, क्या अपने सहाबा को छोड़ के खा सकते थे वो? नहीं। हजरत जाबिर की जैसे ही आवाज आई कि अल्लाह के नबी मेरे घर में 10 सहाबियों का खाने का इंतजाम है, आप मेरे घर खाना तनाउल फरमाएं। और आए, कहने लगे कि चलो वहां पर कितने 1000 से जायद सहाबा थे। कितने? 1000 से जायद सहाबा मौजूद हैं। सबके दरमियान में अल्लाह के नबी ऐलान कर दिया कि आज जाबिर के घर में दावत है, तशरीफ लाएं सबके सब। जाबिर के पैरों से जमीन निकल गई रजी अल्लाह ताला अन्हु। अब मालूम है, हालांकि दावत, अगर आपने मुझको दावत दी कि मौलाना नमाज के बाद आपकी दावत है, तो मैं 7-8 को लेकर आ जाऊं तो आप भी हैरान हो जाएंगे। ये वाकई इतनी इंसान की फितरत है, वो कितना कर सकता है उतनी ही दावत दे सकता है।
फिर ऊपर से घर के अंदर की दावत। बाहर के नोटों के दरमियान तो किसी से फोन पे भी मंगा के काम चलाया जा सकता है, मगर बीवी की मौजूदगी में इतनी बड़ी दावत, ये सोचने वाली चीज है। यहां सोचो सहाबा ने अपनी बीवियों को कैसे गाइड किया था। आज कहते हैं ना मौलाना हम कितना भी बोलते घर में नहीं सुनते, यहां समझ लीजिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ऐलान किया, सारे सहाबा के दिलों में खुशी हो गई, भूख मिट गई। सिर्फ भूख का, खाने का नाम सुनकर सारे के सारे उनके दिलों में खुशी की लहर दौड़ी। अब हमें पेट भर खाना मिलेगा इसलिए नहीं, अब सोना है खाकर, उसके बाद फिर से हम बड़ा काम कर सकते हैं, इस नीयत से सहाबा खाना खाते थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया खाना भी इसलिए खाओ कि फिर मुझे इबादत करना है, खाना भी इसलिए खाओ कि मैं जिक्र ज्यादा कर सकूं, खाना भी इसलिए खाओ कि तहज्जुद में खड़ सकूं। आज हमारे पास खाते इसलिए हैं, इसलिए जुमला गलत है हमारे पास। क्या है जुमला? जल्दी नमाज पढ़ लेंगे, आराम से खाना खाएंगे। भाई नहीं, जल्दी खाना खाओ, आराम से नमाज पढ़ो, ये है उसूल। हमने इसको भुला दिया। तो जाबिर के घर सारे सहाबा गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया है जाबिर, रोटी का आटा जो आपकी मोहतरमा ने गूंदा है उसके ऊपर के पर्दे को हटाने के लिए नहीं कहना, उसमें से आटा लेना, बनाते जाना। और चूल्हे पे जो हांडी चढ़ी हुई है, बकरा जो भुनकर उसके अंदर जो शोरबा तैयार किया गया है, उसको भी ढक्कन हटाए बगैर सालन निकालना, उतना ही हटाना जितना सालन निकाला जा सकता है। बस ये दो बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जाबिर हिलते हुए डरते हुए अपनी मोहतरमा के पास जा रही। वहां जाकर उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी को मैंने आपका पैगाम पहुंचाया, मगर नबी ने सारे सहाबा को दावत दी। वो बीवी भी ऐसी नहीं थी, मैंने देखकर कहने के लिए कहा तुमने ऐसा कर दिया, नहीं। उन्होंने कहा आपने सिर्फ 10 लोगों की दावत दी थी? हाँ मैंने दिया। और नबी ने सुना? हाँ सुना। और नबी क्या कहे? सारे सहाबा को दावत है। नबी ने कहा तो बस छोड़ दीजिए नबी के ऊपर, वो अल्लाह देख लेगा। ये थे सहाबियात, ये थे सहाबियात का ईमान, यकीन, जज्बा, जुनून, ईमान पे मर मिटना, सहाबा की दावतें कराना। तो फौरन अल्लाह के नबी की ये बात को सुनकर दोनों के चेहरों पे रौनक आ गई मियां बीवी के। बस अब जाओ, नबी के पैगाम तक, नबी का पैगाम तुमने मुझ तक पहुंचाया, अब जो नबी ने कहा है मैं वही करूंगी। अल्लाह की कसम, तारीख लिखने वालों ने लिखा है, सहाबा के वाकयात आप पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अल्लाह के नबी के वो पैगाम को सहाबिया ने अपने दिल पर लिया और आटे के ऊपर से पर्दा नहीं हटाया। अल्लाह के नबी दस सहाबा को खिलाते फारिग कर दे। अब यहां देखें, नबी को भी उतनी भूख है जितनी सहाबा को, जितनी सहाबा को है उससे ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख है, मगर नबी ने कभी सहाबी से पहले खाना नहीं खाया। ये है सोचने की बात। ददस को बुलाए, खिलाए, पार किया, ददस को बुलाए, खिलाया, भिजाया, कई 10 लोगों की टोली आई, खाई, निकल गई। इसके बाद आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर खाना खाया और बैठकर खाना खाकर कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। फिर उसके बाद अपनी बीवी से कहलवाने लगाया हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु को कि जाओ कहो कि अब पर्दा हटा दें। उसके बाद देखा कि जैसा का तैसा आटा महफूज है और जैसे के वैसा शोरबे का देग मशहूर वैसे ही चढ़ा हुआ है, उसमें से जरा बराबर कम नहीं हुआ। ये कहां से आया? आजकल के जमाने के लोगों को कहेंगे तो हमें लॉजिक बताओ, कहेंगे अरे जाओ तुम्हारी लॉजिक गई भाड़ किसी एक जगह में। लॉजिक हम ऐसी जगह नहीं मानते, हम ऐसी जगह में अल्लाह का हुक्म और मेरे नबी के अल्फाज मानते हैं बस है। इसीलिए ना सबसे पहले सहाबी अबू बकर क्यों नाम पड़ा इनका? इसीलिए पड़ा, क्या था नाम? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमान की सैर कर कर आए, मेराज करके आए, जन्नत जहन्नम पूरे 7 आसमान पे अंबिया से मुलाकात करके आए, जमीन पर आकर कहने लगे कि मुझे एक ही रात में अल्लाह ने आसमान दिखाया, जन्नत जहन्नम दिखाए, कई वक्त मुलाकातें हुई, सारे अंबिया से मैंने मिला। तो मुनाफिकों ने कहा कि नबी ये पागल हो गया है, अल्लाहु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अलियाज़ु बिल्लाह, ये नबी बौखला गया है, ये पागल बातें करना भी शुरू कर दिया है। उसके बाद वहां से गुजर रहे थे हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। अभी इन्हों सिद्दीक नहीं थे, अभी सिर्फ अबू बकर थे।
तो उन्होंने कहा नबी जी क्या फरमाते हो? तो मदीने सारे लोग मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा रहे, मैं कह रहा हूं कि मैंने जन्नत जहन्नम देख कर आई है एक ही रात के अंदर, तो कोई मानो मत मानो, मैं मानने के लिए तैयार हूं और पूरे जगह ऐलान करूंगा कि आप जो फरमा रहे हैं बस वो हर्फ आखिर है, चाहे कोई मानो या ना मानो मैं मानूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा हादा सिद्दीक। सिद्दीक के माने आते हैं बहुत ज्यादा सच बोलने वाला, सादिक के माने आते हैं सच्चा सिर्फ, और सिद्दीक के माने आते हैं जबरदस्त सच बोलने वाला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बड़े पैगाम को उन्होंने चुटकी में हटाकर कहा कि ऐ नबी जी पूरी दुनिया ना माने, मैं आपकी ये बात मानने के लिए तैयार हूं। इस वाक़े को हम आज की नजर में समझ लें, उसको समझने का आसान मिजाज ये है कि हमारी पूरे गांव शहर के अंदर जिल्लत का एक बहुत बड़ा प्रचार हो रहा है। अगर कोई एक बंदा आकर कहे कि आपने ये गुनाह नहीं किया, बेफिक्र रहे, मैं आपके साथ हूं, तो देखना सीना कितना चौड़ा हो जाता है। और उस जमाने में अल्लाह के नबी पे तंज कसे जाने वाले जुमले सब कुछ कह दिए, मगर सिद्दीक ने क्या कहा? मैं मानने के लिए तैयार हूं। मेरे भाइयों बुजुर्गों, हमने सहाबा की सीरत को पढ़ा नहीं है, हमने सहाबा के पैगामात को देखा नहीं है, जिसकी वजह से हमारे ये हाल हैं। मैं कसम खुदा की ये उठा कर कह सकता हूं, अगर कोई एक बंदा या डेली या फिर 8 दिन में 2 मरतबा एक सहाबी का किस्सा अपने घर के अंदर अगर पढ़ने लग जाए, मैं सही कह रहा हूं, ये जो आने वाला जो जनरेशन है, ये आने वाला जो हमारे नौजवान बच्चे जो बालिग होकर बड़े होकर जो इस्लाम के हरधर्म बन रहे हैं, ये बंद हो जाएंगे इंशाअल्लाह, और उनके अंदर जज्बे पैदा होंगे, उनके अंदर जुनून पैदा होगा, उनके अंदर बड़े बड़े हालात को फेस करने का तरीका निकल आएगा। कैसे कैसे फेस किए सहाबा, आप हैरान होंगे। गज़वे बदर के अंदर 313 सहाबा हजारों से कैसा लड़ रहे हैं? अब यहां लॉजिक आप बता ही नहीं सकते। टूटी तलवारें, ऊंट के कमजोर ऊंट और चारा पानी खाए बगैर ऊंटों के ऊपर चल रहे हैं, और ऐसे वक्तों में भी रमजान के रोजे की हालत में तपते हुए अरब के जमाने में वहां पर कईयों हजार के मजमे को जमीन चटाकर इस्लाम के झंडे लगा कर आ रहे हैं। तो अब सोचो मेरे भाइयों कि उनके अंदर ईमान था या कोई और चीज थी? उनके अंदर मेरे और आपका ही ईमान था, जो मैंने और आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा। बुजुर्गों दोस्तों, मैं साफ ये कह रहा हूं, मेरे और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे, हम अपने नबी के ईमान से तो तुलना नहीं कर सकते, सहाबा के ईमान से भी नहीं कर सकते, मगर एक मिसाल दे रहा हूं। मेरे और सहाबा के ईमान में सिर्फ एक बालिश का फर्क है। कितना? एक बालिश का। मेरे और आपका ईमान ये जुबान पर है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हम पढ़ लिए, मगर मेरे सहाबा ने दिल से पढ़ा था, जिसकी वजह से सारी चीजें आसान। ये बातें बोलने की नहीं रखो मेरे भाइयों, इसके ऊपर आप अमल करो। आहिस्ता आहिस्ता अपने अल्लाह के ऊपर यकीन को जमाओ, अपने अल्लाह पे यकीन को मजबूती से लाओ, अपने अल्लाह पे यकीन को ऐसे जमाओ जैसे कि तुम पानी पिए बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं। ऐसा अपने अल्लाह के साथ मनाओ, फिर उसके बाद देखना कि हमारी जिंदगियों के अंदर कैसे कैसे हालात आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, कहने लगे अल्लाह के नबी, मैं अपनी जिंदगी में कुछ परेशान चल रहा हूं, फुला हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शायद तुम्हारी नमाज में कुछ कमी आ रही होगी। इतना ही कहा, बस ये नहीं कहा कि कोई दूसरी बात जो सहाबा का दिमाग दूसरी जगह चले जाए, सीधा इस्लाम पे लेकर आए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा हाँ मैं देख लूंगा इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि वुजू को इत्मीनान से नहीं कर रहे थे, वुजू के अंदर इत्मीनान नहीं आ रहा था, वुजू जैसा करना था उससे थोड़ा कम दर्जे का हो रहा था, जिसकी वजह से उनकी नमाज में खलल आया, और उनकी नमाज में खलल आने की वजह से नमाज के बाद की दुआओं में खलल आया, और नमाज के बाद की दुआओं में खलल आने की वजह से जिंदगी में खलल आ गया। नमाज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम बड़े बड़े मुहलिक गुनाहों में मुब्तला हो, अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसे गुनाह
کہ جس گناہ کے بارے میں سوچ بھی لو تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ایسے گناہ اگر ہیں تو سوچ لو تمہاری نماز کے اندر کمی آ رہی ہے۔ جس دن تمہاری نماز پاورفل ہو گئی، قرآن کی وہ آیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، میں سارے گناہوں کو دبا دیتا ہوں اگر کسی کی نماز سچی ہو جاتی ہے تو۔ ہماری نمازوں کا حال دیکھیں آج۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بارہا واقعہ سنتے ہیں، تیر لگ گئی پنڈلی پہ، سارے صحابہ حیران ہیں، نکالے تو کیسا نکالے، ہاتھ تک لگانے نہیں دے رہے ہیں، مگر بعد میں معلوم ہوا چند صحابہ کے ذریعے سے چھوڑ دینے، یہ جب نماز میں ٹھہر جائیں گے فجر کی یا تہجد کی، اس وقت تم آسانی سے تلوار نکالنا، تیر نکالنا۔ جب آ کے دیکھے وہ نماز میں حالت میں مصروف ہیں تو فوراً صحابہ نے موقع پا کر پیچھے گئے اور آسانی کے ساتھ نماز میں تیر نکال دیا اور وہیں بیٹھ گئے۔ نماز کے بعد حضرت علی سلام پھیر کر ان سے کہہ رہے ہیں اچھا تم تیر نکالنے کے لیے آئے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسکرا کر کہا کہ آپ کی تیر نکل چکی ہے۔ یہ عالم تھا ان کی نماز کا، اور ہماری نمازوں کی حالت ایسی خطرناک ہے میرے بھائیوں بزرگوں۔ اگر ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں تو 4 نہیں 8 دکانوں کا حساب، 12 لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات کو وہیں سولف کرتے ہیں۔ اور ہماری نماز کا یہ عالم ہے، امام صاحب اگر غلطی سے دوسری رکعت میں بیٹھنے کے بجائے اٹھ جائے تو صاحب اٹھ کے ٹھہر جاتے ہیں، ایک کو یاد نہیں رہتا ہے۔ اللہ رحم کرے، امام سے زیادہ سب سے بڑی فکر مندی کی اگر کوئی جماعت ہے دنیا کے اندر وہ مصلیوں کی جماعت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا چوکنا رہنا چاہیے، اتنا پاورفل رہنا چاہیے، اتنی مضبوطی کے ساتھ۔ اسی لیے تو امام کے بالکل پیچھے ٹھہرنے والوں کے رولز ذکر کیے گئے اسلامک لا میں، کہا گیا ہے کہ سب کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے، انہی کو ٹھہرائیں، اگر امام کو کچھ ہو جائے، اگر وہ ہاتھ بڑھا کر آگے آئے تو وہ نماز مکمل کرا سکے۔ یہ ہے اسلام کے اندر کی نماز کا پاور، یہی ایمان کے جذبے۔ اللہ پہ دیکھو میرے بھائیوں بزرگوں، میں لمبی چوڑی تقریریں تو کر ہی رہا ہوں یہاں پر جب سے آیا ہوں، مگر اتنا یاد رکھیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے صرف 3 کام کریں، بس صرف 3 کام۔ پہلا کام، جو بھی کر رہے ہیں یقین کے ساتھ کریں، چاہے دنیا کا کرو چاہے آخرت کا کرو۔ دنیا کا کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں، یہ یقین رکھ کے کرو کہ میں اس کے ذریعے سے کروڑ روپے کماؤں گا انشاءاللہ۔ یہ ایک آپ کا یقین ہونا چاہیے، یہ آپ کا ڈریم ہونا چاہیے۔ نبی نے فرمایا، حدیث سنیے آپ، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ کے ساتھ جو بندہ جس طریقے سے گمان کرے گا ویسے ہی ہو جائے گا۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، کاروبار شروع کر دیے یا پھر کوئی اچھے کام شروع کر دیے، نہیں چلنے والا ہے، تھوڑے دن تک جیسا سوچے ویسے ہی ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے خود فرمایا انا ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق چلتا ہوں۔ اگر وہ بندہ میرے ساتھ اچھائی کا سوچتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہوں، اگر وہ میرے ساتھ برائی کا معاملہ نہیں مطلب برا سوچتا ہے میرے تعلق سے، یہ نہیں ہونے والا ہے، یہ ایسا ویسا ہی کر دیتا ہوں۔ اسی لیے یقین رکھو، یقین کے ساتھ چلو۔ دوسری چیز میرے بھائیوں بزرگوں، اپنے اللہ کے ساتھ یقین کو مضبوط کرنے کے لیے بنیادی شکل یہ ہے کہ اپنی نماز کو مضبوط بناؤ، اپنی نماز کو اتنی ہائی لائٹ بناؤ، اپنی نماز کو اتنی پاورفل بناؤ، اپنی نماز کو اتنی جاندار بناؤ، اگر تم نماز میں ٹھہرے رہو پوری دنیا تمہارے ذہن سے ختم ہو جائے۔ یہ آج بھی بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے مفتیان اعظام یہ اپنے بیانات میں کہہ رہے ہیں، آج بھی اگر امت مسلمہ صحیح نماز پڑھنا اگر شروع کر دے، اللہ رب العزت آج ہی مسلمانوں کی حالت کو بدل سکتے ہیں۔ آپ جان کر حیران ہوں گے، حضرت عمر جو کہ ہم اور آپ جیسے ہی تھے مگر وہ صحابی تھے، ان کا رتبہ بڑا تھا، ان کے پاس نبی کی دعائیں تھی، سب تھی، ہمارے پاس نہیں ہے، مگر انہوں نے نبی کی دعاؤں کو اپنے نیک اعمال، یقین، نماز، اعتقاد، توکل کے ساتھ پھیر دیا، فارس کو فتح کر دیا، ایران کو فتح کر دیا، ملک شام کو فتح کر دیا، بیت المقدس اپنے ہاتھ میں لے لیا، اکیلے بندے نے، اکیلا بندہ پوری دنیا کی 75 دنیا پر حکومت کر جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ بندہ رات میں سونے سے پہلے اپنے اللہ کی بارگاہ میں ٹھہر کر
कईयों लंबी लंबी रकातें कर कर कहता, ए अल्लाह मैं ये आगे का काम करने जा रहा हूं, आपकी मदद शामिल हाल फरमा। बस ये इतना अपने अल्लाह के साथ मजबूती को जोड़ो। और आखिर में ये उन्वान के तहत में मैं दूसरी बात ये कर कर अपनी बात खत्म करता हूं। भाइयों बुजुर्गों, हालात चाहे जैसे भी हों, चाहे वो मेरे हालात हों, चाहे वो आपके हालात हों, आपके हालात आप जितना बेहतर जानते और आपका अल्लाह जितना बेहतर जानता है वो मैं नहीं जानता। ये सारे दुनिया के अंदर के जिंदगी के अंदर जीने वाले लोगों के इसी तरीके से मामलात होते हैं। अब उसके हल के लिए क्या करना है? यहां जा रही दुआ की दरखास्त, कोई भी उम्रे को, ठीक है उम्रे को जा रही उनसे दुआ की दरखास्त, ठीक है कोई बात नहीं है। मगर मेरे प्यारे हरदिल अजीज दोस्तों बुजुर्गों, आपने कभी अल्लाह के सामने अकेली मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़कर आंसू बहाए? ये नहीं करते हम। मैंने जिससे जो भी मुझसे दुआ की दरखास्त करा रहा है, मैं यही कह रहा हूं कि भाई 2 रकात नमाज पढ़ के क्या अपने घर की हालत को आप रो के अल्लाह को बताएं? नहीं। अभी आपने देखा होगा एक वीडियो बहुत तेजी से, कितने की लोग ने शायद उसको देख लिया है। एक आदमी अल्लाह से कैसा दुआ मांग रहा है, अकेला मस्जिद में बैठकर इशारे कर कर, इशारे, अल्लाह ऐसा है, अल्लाह मेरे साथ ऐसा है वैसा है। जरूरी नहीं अल्लाह को हाथ उठाने की, हाथ उठा के दुआ करने की। आपको आप दिल के अंदर के दर्द को निकालो, अंदर के जख्म को निकालो, अंदर की तकालीफ को निकालो, अंदर का एक तरह का उलझता हुआ फुलझता हुआ गम निकाल कर रखो तो सही अल्लाह के सामने। अगर मैं यहां अगर किसी को बोला कि कितने ऐसे लोग हैं जो रोजाना अपने अल्लाह के लिए, फर्ज तो छोड़ दो, फजर दो और असर मगरिब तो करना ही करना है, 2 रकात मेरे लिए, मतलब आप अपने लिए और आप अपने घर की सलामती के लिए 2 रकात पढ़ के अपने अल्लाह को अलग से मिस कॉल कौन कौन दिए हैं? इसमें बहुत सारे कम लोग होंगे जो हाथ उठाएंगे। मेरे भाइयों, फर्ज से अल्लाह मुतवज्जे होते हैं, नफिल से अल्लाह सीधा डायरेक्ट तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं। ये सीधा सीधा लेटर पैड है, ये ऑफिशियल लेटर पैड है। 2 रकात नफिल नमाज पढ़ो, अपने अल्लाह को मनाओ। और लास्ट में ये बात है कि गीबत, चुगली, बहतान, इल्जाम, दूसरों की टो, ये 5 चीजों से बच जाओ। अल्लाह की कसम, कल नबी के सामने ठहर कर उनके हाथों से कौसर पी लेना, शान से जन्नत पे चले जाना। ये 80 साल की जिंदगी का मैंने आपको खुलासा सुना दिया। मैं अल्लाह से भरपूर दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम तमाम की जिंदगियों में करोड़ों अरबों खरबों रहमतें नाजिल फरमाए। बोलो आमीन। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी जिंदगी के अंदर जो काम रुके हुए हैं, अल्लाह वो हमारे काम को आफियत से पार करा दे। आमीन। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगी के अंदर जो हम करने के लिए आगे फ्यूचर में काम सोचे हैं, ऐ अल्लाह तू उसमें खैर ही खैर नसीब फरमा और हमारे ऊपर आने वाली बलैयात को अपने फजल से दूर फरमा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को कही गई बातों के ऊपर अमल की तौफीक नसीब फरमा और यकीन एतकाद अल्लाह पे भरोसा मुकम्मल करने की तौफीक नसीब फरमा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।